A very good morning, class. We are continuing chapter 5, the therapeutic approaches, in which we had understand the concept of psychotherapy, the therapeutic relationship, the different dimensions in which we compare the three basic therapies, and after that the major therapies. Okay, we understand almost all the therapies: psychodynamic, behavioral therapy, humanistic existential therapy, and the biomedical therapy. These four therapies are basically in a major therapy, considered in a major therapies. And today we studied about the alternative therapies. Okay, alternative, as the name suggests, these therapies are basically alternative. ठीक है, जब previous सारी therapies workout नहीं करती, effective नहीं होती हैं, even the drugs are ineffective, in this situation we use to alternative therapy. And one important point is here is that sometime with medication and with major therapies we also use some alternative therapies as a substitute. ठीक है, वहां पे भी हम एज अ सब्सटीट्यूट और कभी कभी साइमल्टेनियसली भी हम बहुत सारी चीजों को यूज करते हैं फॉर डिफरेंट डिसऑर्डर्स. ठीक है, बहुत सारे डिसऑर्डर्स में हम इन सारी चीजों को यूज करते हैं, अल्टरनेटिव थेरेपीज को. सो टुडे वी डिस्कस अबाउट द अल्टरनेटिव थेरेपीज. Alternative therapies. So in alternative therapies there are so many therapies. Most popular is the yoga and wait a minute. So in this, very important is the yoga and the meditation. These two therapies. The first one is the yoga, the different type of yoga, basically the SKY, Sudarshan Kriya Yoga, and the Kundalini Yoga. You can say the KY. This is okay. So in yoga there is Sudarshan Kriya Yoga and the Kundalini Yoga. These two techniques are very much popular for treating the psychological patients. And the second is the meditation. This is again very frequently used technique for welfare of the psychological ill patients. So let's start the alternative therapies. So alternative therapies are so called because they are alternative treatment possibilities of the conventional drugs treatment or psychotherapy. There are many alternative therapies such as yoga, meditation, acupuncture, herbal remedies, and meditation herbal remedies, and so on. So in the past 25 years, yoga and meditation have gained popularity as treatment programs for psychological de-stress. ठीक है, previous 25 years से the importance of yoga and meditation is very much high. बहुत ज़्यादा importance इसकी increase हो गई है because इस field में बहुत ज़्यादा researches हो रही है और इसकी effectiveness को prove किया गया है बहुत सारी studies से. Even after in India, after पतंजलि का जो रामदेव बाबा जी का स्टार्ट हुआ है उसके बाद से ये सारी चीजें और ज्यादा पॉपुलर हो गई हैं उनकी वजह से, और बहुत सारे इंडियन संत जो हैं उनकी वजह से वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे योगा की इम्पोर्टेंस देखने को मिल रही है. इवन फॉरेन कंट्रीज में भी, हमारे यहाँ तो रूट्स रही ही हैं एंशिएंट हिस्ट्री में हमारे, बट एट द सेम टाइम ग्लोबलाइज वे में योगा को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाने लगा है फॉर मेंटली इल पेशेंट्स. ठीक है, मेंटली इल पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है और कुछ फ्यू ईयर्स से इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है. इस फील्ड में बहुत ज्यादा नए रिसर्चेस हो रहे हैं और बहुत ज्यादा फाइंडिंग्स निकल के आ रही है जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल है हमारे मेंटली इल पेशेंट्स के लिए. ठीक है, एंड योगा इज एन एंशिएंट इंडियन टेक्निक डिटेल इन दी अष्टांग योगा ऑफ पतंजलि's योगा सूत्रास. ठीक है, ये दो टेक्निक है. अष्टांग योगा जो कि पतंजलि योगा सूत्रास का है, एंड योगा एज इट इज कॉमनली कॉल्ड टुडे either refers to only the asanas और body postures. योगा को बेसिकली बॉडी पोस्चर्स या आसन के थ्रू जाना जाता है, बट दिस इज बियॉन्ड इट. इससे भी ज्यादा बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं. एंड पोस्चर्स का कंपोनेंट और टू ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस और प्राणायाम. देखिए, अनदर पॉइंट क्या है, ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस और या कह सकते हैं हम प्राणायाम, एंड सम टाइम कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू. ठीक है, दैट्स मीन द पोस्चर्स, the posturing, the asanas, and
एट द सेम टाइम द ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, और यू कैन से द क्या कह सकते हैं उसको हम, कॉम्बिनेशन इन दोनों चीजों का होता है, ठीक है, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस का, जिसको हम प्राणायाम कहते हैं. So this is the combination of these two. And meditation refers to the practice of focusing attention on breath or on an object or thought or a mantra. ठीक है, meditation simply means concentration. किसी एक ऑब्जेक्ट पे हो सकता है, अपनी ओन ब्रीथिंग पे हो सकता है, या फिर किसी मंत्र पे या किसी श्लोक पे, किसी साउंड पे, किसी भी चीज पे लॉन्ग टाइम तक अटेंशन पे करने के लिए प्रैक्टिस की जाती है. डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस को फील किया जाता है. दिस इज द मेडिटेशन. इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट मेडिटेशन जो है वो है विपासना मेडिटेशन. द विपासना मेडिटेशन. ठीक है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट मेडिटेशन टेक्निक. So, meditation refers to the practice of focusing attention on breath or on an object or thought or mantra. ठीक है, किसी भी चीज पे prolong attention, and here attention is focused. So, in Vipassana meditation, also known as mindfulness based meditation, this is also known as mindfulness based meditation. And there is no fixed object or thought to hold the attention. The person passively observe the various bodily sensations and thought that are passing through in her or his awareness. ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, द माइंडफुलनेस मेडिटेशन, ये जो टेक्निक है विपासना मेडिटेशन में, इसमें जो भी अपकमिंग थॉट्स हैं, अपकमिंग सेंसेशन हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन्स फील कर रहे हैं, उन्हें पास थ्रू करने दिया जाता है. वो हमारे कॉन्शियस लेवल पे आते हैं, देन हम उसे मूव ऑन करते जाते हैं, और इसी तरह से हम एक रिलैक्स काम डाउन मोड पे जाते हैं. वो हमारा डीप कॉन्शियस लेवल होता है, जहाँ पे हम डीपली हमारे अनकॉन्शियस में एंटर करते हैं. ठीक है, सो दिस इज द विपासना मेडिटेशन. So the rapid breathing technique is induce hyper ventilation as in Sudarshan Kriya Yoga. This is very popular technique. This is the yogic technique, and Sudarshan Kriya Yoga is found to be a beneficial. ठीक है, hypertension में this is very useful. Sudarshan Kriya Yoga. And low risk, low cost adjunct to the treatment of stress and anxiety, post-traumatic stress disorder, depression, stress-related medical illness, substance abuse, and rehabilitation of the criminal offenders. ठीक है, तो सी SKY कितनी इंपॉर्टेंट टेक्निक है सुदर्शन क्रिया योगा. ये बहुत सारे डिसऑर्डर्स, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, PTSD, सब्सटेंस अब्यूज, इवन ट्रीटिंग फॉर द mentally ill, और यू कैन से द रिहेबिलिटेशन ऑफ द क्रिमिनल ऑफेंडेंस. ठीक है, जो हमारे डेलिक्वेंट चिल्ड्रंस हैं उनके लिए, जो क्रिमिनल्स हैं, माइल्ड क्रिमिनल्स हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है. एंड इन सुदर्शन क्रिया योगा हैज बीन यूज्ड अ पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन टेक्निक टू एलिवेट PTSD इन सर्वाइवर्स ऑफ मास डिजास्टर. तो PTSD, जो मास डिजास्टर्स के बाद जो चीजें PTSD जो डेवलप करते हैं बहुत सारे इंडिविजुअल्स, उसके प्रिवेंशन के लिए, प्रिवेंशन नहीं कह सकते, इंटरवेंशन के लिए, ऐसे पॉपुलेशन जो कि किसी तरह का मास डिजास्टर फील किया है, तो आफ्टर दैट उनको इस तरह के इन्वेंशन प्रोग्राम्स दिए जाते हैं इन टेक्निक्स के थ्रू, जिसके थ्रू उनको SKY की ट्रेनिंग दी जाती है. योगा टेक्निक इनहेंस वेलबींग, मूड, अटेंशन, मेंटल फोकस एंड स्ट्रेस टॉलरेंस. ठीक है, योगिक जो टेक्निक्स हैं ये बेसिकली हमारे लिए बहुत हमको वेलबींग बनाती है, हमारे मूड में, अटेंशन में, मेंटल फोकस में एंड स्ट्रेस टॉलरेंस में ये हेल्पफुल हैं. और प्रॉपर ट्रेनिंग बाय अ स्किल्ड टीचर एंड अ 30-minute प्रैक्टिस एवरी डे विल मैक्सिमाइज द बेनिफिट. ठीक है, रिसर्च शो करती है कि जो किसी प्रॉपर टीचर से ट्रेनिंग लेने के बाद डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट आसन्स के, एंड आफ्टर दैट इसे पर डे अगर आप 30 मिनट भी कर रहे हो तो भी ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है. इवन एक लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर आप एक वीक में अगर 50 मिनट कर रहे हो डिफरेंट टाइम पे, सपोज आपने आज 10 मिनट किया योगा, देन आपने 2 अल्टरनेट डे फिर 10 मिनट्स किया, ऐसे करके अगर आप पूरे वीक में 50 मिनट भी मिनिमम आप अगर योगिक क्रियाएं कर रहे हो, तो डेफिनेटली दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर योर एंगर टॉलरेंस, फॉर योर कॉन्सेंट्रेशन, फॉर योर मेंटल हेल्थ.
ठीक है, मेंटल हेल्थ को बूस्टअप करेगी, आपके टॉलरेंस लेवल को इंक्रीज करेगी, आपके हैप्पीनेस के ग्राफ को इंक्रीज करेगी। तो ये सारी चीजों के लिए SKY बहुत ही सुटेबल, बहुत ही अच्छी टेक्निक है। Research conducted at the National Institute of Mental Health and Neuroscience, NIMHANS, which is situated in Bangalore, India, and has shown that SKY reduce depression, and further alcoholic patients who practice SKY have reduced depression and stress level. So insomnia is treated with yoga. Insomnia is a disorder. This is also known as sleep deprivation. ठीक है, insomnia that's mean कुछ ऐसे patients होते हैं जिन्हें नींद नहीं आती. They complain, they awake from the 2 days, 3 days. ठीक है, वो 2 से 3 दिन तक सोए नहीं है, 1 हफ्ते से सोए नहीं है. They are suffering from the insomnia. ठीक है, वो स्लिप नहीं आ पाती उन्हें, वो रिलैक्स नहीं हो पाते. That's why वो एक स्लिप की पोजीशन में नहीं आ पाते. So SKY जो है वो बहुत ही हेल्पफुल है फॉर डिप्रेशन, स्ट्रेस एंड इवन इंसोम्निया के लिए भी. अल्कोहलिक जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल टेक्निक है. एंड योगा रिड्यूस द टाइम टू गो टू स्लिप एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्लिप. ठीक है, ये कम से कम टाइम में स्लिप का, एट द सेम टाइम स्लिप की क्वालिटी को इंक्रीज करता है, जिससे कि आप फिजिकली रिलैक्स फील करते हो. स्लिप इज वेरी नेसेसरी फॉर अवर प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग. सो इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करके वो आपको फिजिकली हेल्थी रखता है एंड अल्टीमेटली मेंटली भी हेल्थी रखता है. नाउ मूव टू द कुंडलिनी योगा. So Kundalini Yoga taught in the USA has been found to be effective in treatment of mental disorder. ठीक है, इवन USA ने भी ये प्रूफ किया है, माना है इस बात को कि डेफिनेटली जो कुंडलिनी योगा है ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए एंड ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है. द इंस्टीट्यूट फॉर नॉन लाइनर साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, San Diego, USA has found that Kundalini Yoga is effective in the treatment of OCD. OCD is a major major disorder, major mental disorder. So इसके ट्रीटमेंट में यूएसए की यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी जो है उसने ये प्रूव किया है वहाँ की रिसर्च ने कि डेफिनेटली ओसीडी की ट्रीटमेंट में कुंडलिनी योगा बहुत ज्यादा इफेक्टिव है. So Kundalini Yoga combines pranayam or breathing technique with chanting of mantra. ठीक है, प्राणायाम एंड द ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस जो है इसका कॉम्बिनेशन है कुंडलिनी योगा. एट द सेम टाइम यहाँ पे कुछ मंत्र का भी उच्चारण किया जाता है. कोई डिफरेंट मंत्र होते हैं जिसपे कॉन्सेंट्रेशन किया जाता है. सो दिस इज द कुंडलिनी योगा. And prevention of repeated episode of depression may be helped by mindfulness based meditation or vipassana. So जो डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं, मेजर डिप्रेशन एट द सेम टाइम बाइपोलर डिसऑर्डर्स, ठीक है, बाइपोलर 1 एंड बाइपोलर 2 के लिए भी जो माइंडफुलनेस मेडिटेशन है या जिसे हम विपासना मेडिटेशन कहते हैं वो काफी हेल्पफुल है. दिस मेडिटेशन वुड हेल्प द पेशेंट टू प्रोसेस इमोशनल स्टिमुली बेटर एंड हेंस प्रिवेंट biases in the processing of these stimuli. ठीक है, इवन हमारे जो हेलुसिनेशन है, डिल्यूजन्स हैं, उनमें भी ये इफेक्टिव है बिकॉज ये हमारे प्रॉपर डिटेक्शन जो होता है, हमारा डिटेक्ट कर पाते हैं इन्वायरमेंट से स्टिमुली एंड उसको प्रोसेस करते हैं, उसमें भी हेल्प करता है. हम एक्यूरेटली डिटेक्ट कर पाते हैं, एक्यूरेटली प्रोसेस कर पाते हैं, इफेक्टिवली प्रोसेस कर पाते हैं. दैट्स वाई हमारी हेलुसिनेशन और डिल्यूजन्स को भी डिक्रीज करता है. क्या? कुंडलिनी योगा. ठीक है, एंड विपासना मेडिटेशन. दीज टू टेक्निक्स आर वेरी मच यूजफुल फॉर इवन साइकोटिक डिसऑर्डर्स ऑल्सो. So this is all about the alternative therapies. Here basically the 3 therapies, the SKY, Sudarshan Kriya Yoga, and Kundalini Yoga and the Vipassana meditation. These 3 techniques is very much important in the alternative therapy section. Now move to the last topic of this chapter is the rehabilitation of the mentally ill. ठीक है, move to the last topic. So this is last topic. After that, your chapter 5 is finished. And in next video, we will discussing about the questions related to chapter 5. Okay. So last topic is the rehabilitation of mentally ill. See, we had already studied about so many therapies
फर्स्ट ऑफ ऑल द डिसऑर्डर्स, आफ्टर दैट द थेरेपीज. ठीक है. When the therapy is over, जब क्लाइंट जो है, जो हमारा पेशेंट है, वो किसी पर्टिकुलर डिसऑर्डर से सफर कर रहा है, एंड आफ्टर दैट जब वो डिसऑर्डर थ्रू थेरेपीज, थ्रू द प्रॉपर मेडिटेशन या थेरेप्यूटिक प्रोसेसेस वो ट्रीट हो जाता है. ठीक है. वो कंप्लीटली नॉर्मल स्टेट में आ जाता है. आफ्टर दैट भी बहुत सारे स्कीमास हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही हैं और वो उसे सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करती. ठीक है. बहुत सारे आप जानते हो कि बहुत सारा स्टिग्मा रिलेटेड है मेंटली इल पेशेंट्स के साथ. इवन अगर आप मेंटली इल हो और आपकी जॉब छूट गई, आपकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, आपने ट्रीटमेंट लिया, यू आर नाउ कंप्लीटली नॉर्मल, यू आर कंप्लीटली वेल बीइंग. ठीक है. आप एकदम नॉर्मल बन चुके हो, यू आर नॉट आप कंटिन्यू नहीं हो एक मेंटल पेशेंट की तरह, बट स्टिल बहुत सारे इश्यूज हैं जो सोसाइटी में आपको वापस से रिप्लेस करने के सेशन में आते हैं. सो दिस इज द रिहैबिलिटेशन. रिहैबिलिटेशन दैट्स मीन जहां पे हम क्लाइंट को आफ्टर ट्रीटमेंट उसे फर्दर उसकी सोसाइटी, उसकी फैमिली, उसके जॉब प्लेस में रिहैब करते हैं, रिप्लेस करते हैं. ठीक है. अभी तक वो हॉस्पिटल में था या नहीं भी था तो सेपरेटेड रह रहा था और ट्रीटमेंट ले रहा था, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स ले रहा था, थेरेपी ले या मेडिकेशन ले, कुछ भी. ठीक है. जब वो कंप्लीटली ठीक हो गया, ट्रीट हो गया और उसके जो सिम्टम्स हैं वो अब नहीं शो हो रहे हैं, वो कंप्लीटली नॉर्मल है, तो आफ्टर दैट उस सिचुएशन में उसे वापस से एक नॉर्मल लाइफ की डिजायर है. अदरवाइज वो सारे सिम्टम्स डेवलप करने लगेगा. सपोज एक पर्सन जो बहुत ज्यादा डिप्रेसिव एपिसोड से गुजरा है और आफ्टर डिप्रेशन अगर उसके पास जॉब नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, फैमिली नहीं है, तो अगेन वो सारे सिम्टम्स डेवलप कर लेगा. ठीक है. तो उसे बहुत ज्यादा किस चीज की जरूरत है? एक इंगेजिंग एक्टिविटीज की जरूरत है. कुछ ऐसी नॉर्मल डेली लाइफ रूटीन टास्क जो होते हैं उसकी जरूरत है, जिसकी वजह से वो वापस से अपने सोसाइटी, अपनी फैमिली और अपने जो भी उसका स्किल्स था वो से शो कर पाए, एक्सप्रेस कर पाए सेल्फ को, और उसको एक सपोर्ट सिस्टम मिले जिससे वो वापस से रिहैब कर पाए. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिहैबिलिटेशन, जहाँ पे हम रिहैब करते हैं, रिहैबिलिटेट करते हैं सारे क्लाइंट्स को, पेशेंट्स को वापस से उनकी सोसाइटी, उनके जॉब प्लेस, उनकी फैमिलीज में. सी, द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैज two component, that is reduction of symptoms and improving the level of functioning or quality of life. ठीक है. फर्स्ट स्टेप में हम उसके सिम्टम्स को डिक्रीज कर रहे हैं, सेकेंड स्टेप में उसकी फंक्शनिंग जो है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं. तो जब हम सेकेंड स्टेप की बात कर रहे हैं, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंप्रूविंग द प्रॉपर फंक्शनिंग, तो वहां पे डेफिनेटली हमें रिहैबिलिटेशन की जरूरत होती है. सो द reduction of symptoms and improving the level of functioning or quality of life. So in the case of milder disorders such as generalized anxiety disorder or reactive depression or phobia, reduction of symptoms is associated with an improvement in the quality of life. So however, in the case of severe mental disorders such as schizophrenia, and reduction of symptoms may not be associated with एंड इम्प्रूवमेंट इन दी क्वालिटी ऑफ लाइफ. ठीक है. कुछ जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ से उसका कुछ रिलेशनशिप नहीं होता कि उसकी वजह से उसके सिम्टम्स डिक्रीज होंगे, बट डेफिनेटली जो हमारे माइल्डर डिसऑर्डर्स हैं, न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स हैं, वहां पे न्यूरोसिस डिसऑर्डर है, सॉरी, तो वहां पे जो सिम्टम्स हैं वो डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ लाइफ की वजह से इफेक्टेड होते हैं, तभी डिक्रीज होंगे. सपोज एक इंडिविजुअल एंशियस है या स्ट्रेस में है, सो डेफिनेटली जब उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होगी, वो किसी यूजफुल एक्टिविटी, इंटरेस्टिंग एक्टिविटी में इंगेज रहेगा, तो उसका स्ट्रेस का लेवल डिक्रीज होगा. मतलब जब हम उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं, उसका सिम्टम डिक्रीज हो रहा है. अगर वो डिप्रेशन में है और हम उसके सोशल नेटवर्किंग जो है उसका जिससे भी अफेक्शन है, अफेक्शन रिलेशनशिप, उसके कम्युनिकेशन, उसके रिलेशनशिप को इनहेंस कर दे रहे हैं, तो एट द सेम टाइम उसके डिप्रेसिव सिम्टम्स जो है वो डिक्रीज होंगे. सो डेफिनेटली इस टाइप के डिसऑर्डर्स में क्वालिटी ऑफ लाइफ, फंक्शनिंग, प्रॉपर फंक्शनिंग, एंगेजमेंट इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इज वेरी नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिक्रीजिंग द सिम्टम्स. Okay, so many patients suffer from negative symptoms such as disinterest and lack of motivation to do work or to interact with people. So rehabilitation is required to help such patients become self-sufficient, and the aim of rehabilitation is to empower the patient to become a productive member of society to the
एक्सटेंड पॉसिबल, ठीक है, जितना भी एक्सटेंड पॉसिबल है रिहेबिलिटेशन के थ्रू हम पेशेंट्स को वापस से एक नॉर्मल इंडिविजुअल में कन्वर्ट करते हैं, एट द सेम टाइम उसे इम्पावर करते हैं कि वो एक प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी की तरह रिप्रेजेंट करे सेल्फ को और सेल्फ सफिशिएंट हो, ठीक है, उसे किसी की हेल्प की जरूरत ना हो एट एनी वे. सो इन रिहेबिलिटेशन द पेशेंट्स आर गिवन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सोशल स्किल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल थेरेपी, ठीक है. ये 3 तरह की थेरेपीज हम बेसिकली क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं इन द रिहेबिलिटेशन सेक्शन. फर्स्ट इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी. Occupational therapy. Second is social skill. Social skills training. And the last one is vocational therapies. ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट थेरेपीज हैं जो हम रिहेबिलिटेशन के सेक्शन में प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को. सो इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी द पेशेंट्स आर टॉट स्किल सच एज कैंडल मेकिंग, पेपर बैग मेकिंग एंड विंग टू हेल्प देम टू फॉर्म अ वर्क डिसिप्लिन, ठीक है. मतलब जो वर्क इन्वायरमेंट में एडजस्टमेंट के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड है, ठीक है, उस स्किल्स में उसे ट्रेन करते हैं. एट द सेम टाइम कुछ प्रोडक्टिव चीजों को बनाना, मेकिंग वर्क, जैसे कैंडल मेकिंग है, पेपर हैंडीक्राफ्ट मेकिंग है, कुछ भी हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स जो हैं, या कार्ड्स मेकिंग, ठीक है, इस तरह के जो हमारे ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं, या दिया बनता है बहुत ज्यादा, दिया मेकिंग. तो इस तरह की कुछ ऐसी स्किल उनको सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं, जिससे वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो पाए, बेसिकली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाए और अपनी लाइफ को सर्वाइव कर पाए विद रिस्पेक्ट, ठीक है, विदाउट बर्डन, मतलब किसी पे बर्डन बने बिना वो अपने सेल्फ डिपेंडेंट हो और अपनी लाइफ को सर्वाइव कर पाए फाइनेंशियली वे, ठीक है. ठीक है, एट द सेम टाइम उसे वर्क डिसिप्लिन भी सिखाते हैं, विच इज वेरी नेसेसरी फॉर वर्किंग. एंड सोशल स्किल ट्रेनिंग हेल्प्स द पेशेंट टू डेवलप इंटरपर्सनल स्किल्स थ्रू रोल प्ले एंड इमिटेशन एंड इंस्ट्रक्शंस. तो इमिटेशन के थ्रू, रोल प्ले के थ्रू एंड इमिटेशन दैट्स मीन मॉडलिंग, इसके थ्रू हम उन्हें इंटरपर्सनल स्किल्स सिखाते हैं. इसमें हमारी कम्युनिकेशन स्किल आ जाएगी एंड असर्टिवनेस ट्रेनिंग आ जाएगी, ठीक है, किस तरह से हम इंटरैक्ट कर सकते हैं सोसाइटी में, हाउ टू एक्सप्रेस अवर इमोशंस, ये सारी जितनी भी चीजें हैं वो हमारे सोशल स्किल ट्रेनिंग में आ जाएंगी. एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू टीच द पेशेंट टू फंक्शन इन अ सोशल ग्रुप, ठीक है, जैसे जो इंडिविजुअल है वो सोशल ग्रुप में फंक्शन करने के लिए एबल हो, सो इसके लिए हमें उन्हें ट्रेन करना होता है. And another is a cognitive retraining. So cognitive retraining is given to improve the basic cognitive functions of attention, memory and executive functionings. ठीक है, cognitive training भी हम देते हैं जिसके थ्रू thought process जो हो रहा है, decision making है, या फिर जो भी हमारे attention, concentration में, memory में जो भी problem है उसमें जो कि help हो सके. So ये सारी training cognitive retraining के section में हो जाती है. And after the patient improves sufficiently, vocational training is given, wherein the patient is helped to gain skills necessary to undertake productive employment. ठीक है, after that हम vocational trainings भी provide करते हैं when client is treated. ठीक है, client completely ये सारी चीजों को करने के लिए sufficient हो जाता है, active हो जाता है. After that vocational training के थ्रू हम वो स्किल्स उन्हें उस स्किल्स को लर्न करने में उन्हें हेल्प करते हैं जो कि रिक्वायर्ड है किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन से रिलेटेड फील्ड्स में, ठीक है. तो जो भी उसमें इंटरेस्टेड है तो उसके लिए भी उसे हम ट्रेन करते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द वोकेशनल ट्रेनिंग. सो इन दिस सेक्शन वी अंडरस्टैंड अबाउट द रिहेबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल, दैट्स मीन द occupational therapy, social skill training and the vocational therapy and the cognitive retraining also. So ये ज़्यादा important चीजें हैं. So in this video your chapter 5 is completed. You had understand about the therapeutic approaches, the concept of psychotherapy, the therapeutic alliance, the aims of psychotherapy, the 5 major therapies, the psychodynamic, the behavioral, humanistic, existential and the biomedical. These 5 therapies
and after that the alternative therapies. ठीक है, and the factors affecting for therapy. ठीक है, थेरेपी के इफेक्टिव होने के लिए क्या कैसे फैक्टर्स रिलेटेड हैं, उन फैक्टर्स को भी हमने डिस्कस किया. एंड आफ्टर दैट द रिहेबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल पेशेंट्स. दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर 5. ठीक है, एंड लेट्स रिवाइज टोटल चैप्टर ऑल चैप्टर्स इन अ ब्रीफ वे. So in chapter 5 we had studied about the first of all the concept of psychotherapy. That is, psychotherapy is the voluntary relationship between the client and the therapist. The client who seeks help, ठीक है, जिसे help की need है, and the therapist who is trained for giving this type of help. ठीक है, so this is the psychotherapy, which is the voluntary relationship. Now after that the aims of psychotherapy. ठीक है, इसमें बहुत 6 पॉइंट थे जो कि हमारे एम्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, reinforcing clients resolve betterment, easing emotion pressure, unfolding the patients for positive growth, modifying habits. These are the aims. Now after that, therapeutic relationship. In this section we understand about the empathy, unconditional positive regard and the confidentiality. ठीक है, इन 3 मेजर पॉइंट के बेसिस पे हमने थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप अंडरस्टैंड की थी. आफ्टर दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ थेरेपीज. So in classification of therapies, इस सेक्शन में हमने 3 मेजर थेरेपीज, द साइकोडायनेमिक, बिहेवियरल एंड द ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल, इन तीनों थेरेपीज को हमने 6 डायमेंशन, 6 पैरामीटर के बेसिस पे कंपेयर किया था. जिसमें से हमारा जो पैरामीटर्स थे उसमें था कॉजेज क्या हो सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट मोडालिटी हम यूज कर सकते हैं, एंड सिम्टम्स क्यों जनरेट होते हैं, इससे रिलेटेड हमारे डायमेंशंस थे, और ड्यूरेशन था, ये भी सारे डायमेंशंस थे. आफ्टर दैट द मेजर थेरेपीज, फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोडायनेमिक थेरेपी. ठीक है, उसके बाद हमने साइकोडायनेमिक थेरेपी किया. So in psychodynamic therapy there are 2 techniques, the free association and the dream interpretation. ठीक है, and treatment modality में हमारा था transference, resistance and after that the interpretation. And interpretation, clarification and confrontation. ठीक है, जिसे हम working through कहते हैं, repetitive process of clarification and confrontation is a working through. So this is the psychodynamic therapy. After that, behavioral therapy. In behavioral therapy, we studied about few techniques like positive reinforcement, negative reinforcement, and aversive conditioning, systematic desensitization, modeling. ठीक है, ये सारी टेक्निक्स हमने बिहेवियरल थेरेपी के अंडर पढ़ी. देन द थर्ड इज cognitive therapy. So in cognitive therapy, आर्वन बेक की थेरेपी एंड CBT एंड एक जो थेरेपी थी वो So in cognitive therapy, RET मतलब रैशनल इमोटिव थेरेपी एंड द आर्वन बेक थेरेपी, ये 2 थेरेपी हमने पढ़ी. उसके बाद ह्यूमनिस्टिक थेरेपी ठीक है, ह्यूमनिस्टिक थेरेपी में हमने पढ़ा कार्ल रोजर्स की थेरेपी. ठीक है, ह्यूमनिस्टिक एंड एग्जिस्टेंशियल आर इन वन कैटेगरी. सो यहाँ पे गेस्टाल्ट थेरेपी, लोगोथेरेपी एंड द क्लाइंट सेंटर थेरेपी, ये 3 थेरेपी हमने पढ़ा. एंड मैस्लो की प्रिंसिपल पे बेस्ड था ये ह्यूमनिस्टिक थेरेपी. आफ्टर दैट लास्ट इज द बायोमेडिकल थेरेपी. ठीक है, बायोमेडिकल थेरेपी में ड्रग्स एंड इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी जो थी वो हमने पढ़ा, ECT. आफ्टर दैट
बायोमेडिकल के थेरेपी के पास फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू हीलिंग, क्या कौन कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया हीलिंग में. एंड उसके बाद अल्टरनेटिव थेरेपीज. इन अल्टरनेटिव थेरेपी वी स्टडीड अबाउट द yoga and the meditation, and in last section the rehabilitation of the mentally ill patients. This is all about the chapter 5. This is the summary of chapter 5. Thank you so much class. In next video we are discussing about the question answer which is related to the chapter 5. Thank you so much class.